الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم حضرات محترم، پچھلی بار اس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جتنی بھی چیزیں ملی ہیں ہمیں، یا حضور کو جن بھی چیزوں سے نسبت ہے، وہ چیزیں بھی حضور کی نسبت سے ہمارے لیے محترم ہونی چاہیے۔ ان کا ادب و احترام، ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی نسبت حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ حضور کی نسبت سے سب سے بڑی نسبت جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید وہ چیز ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عطا کر کے گئے تھے، اور یہ فرما کے گئے تھے کہ جب تک دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت، میرا راستہ۔ ادب آداب کے ضمن میں سب سے پہلے تو بات ہوئی تھی اللہ رب العزت کے ادب کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیزیں ہیں ان کے ادب کی، قرآن مجید کی۔ آج باری ہے والدین کا ادب، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آئی۔ مولانا عبد الماجد دریابادی ایک مشہور مفسر قرآن ہیں، ان کی تفسیر ماجدی موجود ہے اردو کے اندر بھی، انگلش کے اندر بھی۔ بڑے عالم دین تھے، عربی کے، انگریزی کے، اردو کے، بہت ساری زبانوں کے ماہر تھے۔ کچھ عرصہ مصر میں رہے، ایک اخبار کی ادارت ایڈیٹر بھی رہے۔ ان کی زندگی کے دو دور ہیں۔ ایک دور وہ ہے جب یہ دین سے دور تھے، اور ایک دور وہ ہے جب اللہ نے دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائی اور مفسر قرآن بنا دیا۔ جس زمانے میں یہ دین سے دور تھے اس زمانے کی بات ہے۔ اکبر الہ آبادی ان کے دوست تھے، بڑے شاعر تھے، بڑے ذہین اور بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ اب اکبر الہ آبادی کو یہ فکر تھی کہ کسی طرح عبد الماجد جو ہے اس کا تعلق قرآن سے ہو جائے۔ ایک ذہین آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، اگر اس کا تعلق قرآن سے ہو جائے امت کی بڑی خدمت ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے عبد الماجد سے کہا کہ عبد الماجد تم قرآن پڑھا تھا، اور عبد الماجد اب وہی پرانی جو ان کی ذہن تھا دین سے دوری کا، تو فرمانے لگے قرآن کو کیا پڑھوں، قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ اکبر الہ آبادی ناراض نہیں ہوئے،
کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ عبد الماجد ایک لٹریچر کے آدمی ہیں، شعر و ادب کا ان کو بڑا ذوق ہے، تو کہنے لگے عبد الماجد تم قرآن کو بطور ایک لٹریچر کی کتاب کے پڑھو، دیکھو اس کی زبان دیکھو، اس کا حسن دیکھو، اس کی بات دیکھو، کتنی خوبصورت عربی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے تمہاری یہ بات مان لیتے۔ عبد الماجد نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ کس حال میں پڑھنا شروع کیا کہ پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، بوٹ بھی پہنے ہوئے تھے، کرسی پہ بیٹھے اور دوسری کرسی پہ ٹانگیں رکھی، اور جس طرح کوئی ناول کو رسالہ پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن قرآن کی زبان نے اپنا اثر کیا، تھوڑی دیر بیٹھے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، سیدھے ہو گئے۔ خیر اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوئی۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ قرآن پڑھا تھا؟ کہاں پڑھا تھا؟ تو کیسے پڑھا تھا؟ کچھ ایسے پڑھا تھا کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، بوٹ بھی پہنے ہوئے تھے، جرابیں بھی تھیں، کچھ پینٹ کوٹ بھی تھا، اور بس میں لیٹ کے پڑھتا رہا جیسے کوئی کتاب پڑھتا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ دیکھو میری ایک بات مانو، اگر تم تھوڑا سیدھے ہو کے ذرا بیٹھ جایا کرو، پھر قرآن پڑھو تو اس کی جو زبان ہے زیادہ اثر کرے گی، پھر تمہیں زیادہ سمجھ آئے گی، اس کے اندر ایک حسن ہے اس کی زبان کے اندر۔ تو چلو تمہاری بات مان لیں، دوستی ہے۔ اگلی دفعہ پڑھا تو ذرا سیدھے کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھ، احترام سے۔ اب اس دفعہ قرآن مجید نے زیادہ اثر کیا، زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی، اکبر الہ آبادی نے پھر پوچھا قرآن پڑھا تھا؟ یہاں پڑھا تھا۔ کیسے پڑھا تھا؟ جی اس طرح پڑھا۔ کہنے لگے یار ایک بات مانو، اگر تم میری، دیکھنا پھر کتنا اثر ہوتا، تم ایسے کرو قرآن پڑھنے سے پہلے ذرا جوتے اتار دیا کرو، اور اگر اپنے منہ ہاتھ بھی دھو لو تو بہت اچھی بات ہے۔ یعنی وضو کے بارے میں ان کو ترغیب دی، وضو کر لیا اور جوتے اتار کے ذرا سیدھے ہو کے بیٹھنا، پھر دیکھنا قرآن کی زبان جو ہے، قرآن کا ادب اور لٹریچر جو ہے تم پہ کتنا اثر کرتا ہے، کیسی خوبصورتی ہے اس کے اندر۔ کہتے ہیں چلو یار یہ بات بھی مان۔ اگلی دفعہ وضو کیا، جوتے اتارے اور سیدھی طرح یعنی ادب و احترام کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا شروع۔ اب جب قرآن مجید کا ادب و احترام کیا تو قرآن نے پھر محنوم نہیں رکھا، اور قرآن نے اپنا اثر دکھا دیا، اور عبد الماجد کی زندگی بدل گئی، اور کہاں دین سے دور اور کہاں مفسر قرآن، اور مفسر قرآن بھی وہ جس کی تفاسیر جو ہے چند بڑی تفاسیر کے اندر شمار ہوتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ادب و احترام کبھی خالی نہیں جاتا، کسی کا بھی ادب و احترام ہو، اور پھر قرآن مجید کا ادب و احترام، یہ اگرچہ حقیقت ہے کہ ادب و احترام کا اصل تقاضا تو یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، لیکن اگر کوئی اس کے بغیر بھی قرآن مجید کا ادب کرتا ہے تو اللہ اسے بھی محروم نہیں کرے گا۔ وہ ایک بڑی پرانی مشہور کہانی ہے کسی گاؤں کے ان پڑھ لوگوں کو، پتہ نہیں سچی ہے جھوٹی، اس کے اندر میسج ایک اچھا ہے، سبق اس کے اندر اچھا ہے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں کسی گاؤں کے اندر کوئی بیچارہ ان پڑھ بوڑھا تھا، اب وہ کہیں گیا بازار کے اندر، تو چیزیں خریدی تھی، سارے پیسے، تھوڑے سے پیسے اس کے پاس تھے، اور دیکھا کہ بازار کے اندر ایک بندہ قرآن مجید بیچ رہا ہے، کہہ رہا اللہ کا کلام لے لو، اللہ کا کلام لے لو، اللہ کا کلام لے لو۔ اس کے پاس گیا کہ اللہ کا کلام ہے؟ ہاں اللہ کا کلام ہے۔ اچھا کتنے میں دو گے؟ جتنے پیسے یہ خریداری کے لایا تھا سارے پیسے اس کو دیے اللہ کا کلام میں۔ اب اللہ کا کلام لے کے گھر واپس آیا، بیوی نے کہا کہ وہ سودا سلف کہاں گیا؟ کہا کہ بیوی یہ وہ بات نہ کرنا، میں آج اللہ کا کلام لے کے آیا۔ چلو کوئی بات نہیں، ایک دو دن بھوکے رہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے، اللہ کا کلام ہے ہمارے پاس، پڑھنا نہیں آتا، پتہ ہی نہیں قرآن کیا چیز ہوتی، بس اللہ کا سنا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، دل کے اندر ایک عظمت گھر کر محبت بیٹھ کے اللہ کا کلام ہے۔ اب دونوں لے کے اپنے ہاتھوں میں بیٹھے رہے کہ اس کو کہاں رکھیں، اللہ کا کلام، ہمارے گھر میں تو کوئی ایسی محترم جگہ نہیں ہے، ایسی عزت والی جگہ بھی کوئی نہیں ہے جہاں اللہ کے کلام کو رکھیں۔
सोचते रहे, रात हो गई, बीवी कहने लगी ऐसी तो कोई जगह मुझे समझ नहीं आई घर के अंदर। ऐसा करते हैं, आधी रात मैं अपने सर पे उठा के खड़ी रहती हूँ, आधी रात तू अपने सर पे उठा के खड़ा रह, तो यही इसके अदब एहतराम का तकाज़ा। कहते हैं कि आधी रात खावन सर पे उठा के खड़ा रहा, आधी रात बीवी सर पे उठा के खड़ी रही, और जब सुबह हुई तो दोनों ही हाफिज़ कुरान हो चुके। अब इसके अंदर पैगाम बड़ा अच्छा है, कहानी तो पता नहीं सही है या गलत है, पैगाम बड़ा अच्छा है। पैगाम ये है कि जो इस कलाम का अदब करे अल्लाह उसे महरूम नहीं करे, यकीनन अल्लाह उसको नवाजेगा, किसी भी तरीके से नवाज दे अल्लाह जरूर नवाजेगा। और यही इसीलिए तो कहते हैं बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। असातिज़ा की बारी आएगी, हमने देखा कि हमारे बहुत से क्लास फेलो जो हमसे कहीं आगे थे, बड़े ज़हीन थे, बड़े समझदार थे, बड़े तेज थे, लेकिन असातिज़ा के अदब के अंदर पीछे थे, वो जिंदगी में कहीं पीछे रह गए। और जो नकम्मे नालायक हमारे जैसे थे, असातिज़ा के अदब में आगे थे, वो जिंदगी में कहीं आगे बढ़ गए। तो अल्लाह का अपना निज़ाम है। तो बहरहाल बात ये हो रही थी कि आज हमें बात करनी है, टाइम थोड़ा रह गया, अगली दफ़ा इंशाल्लाह बात पूरी होगी। आज हमें बात करनी वालिदैन के अदब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बहुत से मुकामात पर अपने हुकूक के फौरन बाद वालिदैन का जिक्र किया। इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। और कई जगहों पर बड़े मुख्तलिफ असालीब के अंदर वालिदैन के अदब और वालिदैन का जो एहतराम है उसकी तरगीब दी है, बार बार समझाया है कि ये मुसलमानों ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, ऐसा है क्यों? कि वजह यह है कि बच्चों की मोहब्बत इंसान की फितरत के अंदर मौजूद है, ये जानवरों के अंदर भी है। जानवर भी अपने बच्चों से ऐसी मोहब्बत करते हैं। कभी आपने देखा नहीं, गाय भैंस को बच्चा यूं ही पैदा होता है, उसको चाटना शुरू कर देते, प्यार करना शुरू कर देते, जिस तरफ उसकी आवाज आए भाग भाग के उस तरफ जाते। और कभी कहते हैं ना, किसी गुमशुदा भेड़ को लाना हो तो उसके बच्चे को बुलाओ, तो गुमशुदा भेड़ जो है उसकी आवाज को फॉलो करते करते वहां पे आते। ये फितरत के अंदर मौजूद है। लेकिन वालिदैन की जो इज्जत और अजमत जो है ये फितरत में मौजूद नहीं है, ये इंसान को सीखनी पड़ती। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर कहीं ये नहीं फरमाया कि बच्चों से मोहब्बत करो, क्योंकि फितरत के अंदर मौजूद है, हर इंसान करेगा, हर जानवर करे, सारे करेंगे, इसमें समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये चूंकि फितरत के अंदर मौजूद नहीं था, इसलिए कुरान मजीद में बार बार समझाया गया, देखो कहीं भूल न जाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, शऊरी तौर पर तुम्हें ये करना है, अपने आप को समझाना है, अपने आप को सिखाना है, वरना तुम बहुत पीछे रह जाओगे। वालिदैन अपने बच्चों को जो मोहब्बत देते हैं, चाहिए तो ये था कि बच्चे वो मोहब्बत वालिदैन को वापस लौटाते, लेकिन वो यही मोहब्बत आगे शिफ्ट कर देते। बच्चे यही मोहब्बत अपने बच्चों को मुंतकिल कर देते हैं, वो अपने बच्चों को मुंतकिल कर देते हैं, वापस नहीं आती। वापस आने के लिए ये कलाम जरूरी है, वापस आने के लिए अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात जरूरी है। और वो शख्स कभी वापस नहीं आ सकता जिसके जहन में अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात ना हो। आज मैं सिर्फ आपको कुरान मजीद की आयतों का तर्जुमा सुनाऊंगा, अगली दफा बात करेंगे, और तर्जुमे से आपको खुद ही बात समझ आ जाएगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत असल में चाहते क्या हैं, वालिदैन होते क्या हैं और उनकी अहमियत क्या है। ये सूरह बनी इसराइल है, सूरह इसरा भी से कहते हैं, आयत नंबर 23, 24, 25 घर जाके पढ़ लीजिए। फरमाया वक़ज़ा रब्बुका, और तेरे रब ने ये फैसला कर दिया। यानी अल्फाज अजीब इस्तेमाल किए, ये नहीं कहा हुक्म दिया है, ये नहीं कहा कि अल्लाह ने तरगीब दी है, ये नहीं कहा कि अल्लाह ने नसीहत की, फैसला कर दिया है। इससे तुम इधर उधर नहीं हो सकते। यानी जब कोई हाकिम फैसला कर दे और कोई इधर उधर हो तो फिर क्या अंजाम होता है। यानी पहले ही लफ्ज के अंदर ये बात बता दी कि फिर मैं तुम्हें पूछूंगा, मैं हाकिम हूं, मैं ये फैसला कर चुका हूं, जब मेरे पास आओगे तो पूछूंगा फिर तुम्हें, अगर तुमने ये बात ना की। कज़ा के लफ्ज के अंदर ये सारी बात मौजूद है। वक़ज़ा रब्बुका, तेरे रब ने फैसला किया, किनका? दो बातों का। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू, एक तो ये कि उसके अलावा किसी की इबादत ना करना, वरना पूछूंगा, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। अल्लाह ताबुदू, कि ना तुम इबादत करना, इल्ला इय्याहू, मगर सिर्फ और सिर्फ उसी की, शिर्क न करना। और साथ फौरन बात, व बिल वालिदैनि ihसाना,
दो बातें, अपनी बात और वालिदैन की बात। वबिल वालिदैन एहसाना, ये नहीं कहा वालिदैन से अच्छा सलूक करना, एहसाना, एहसान नेकी से आगे की मंजिल होती है। एक होती है नेकी, इसको बिर कहते हैं, बिर से आगे की मंजिल एहसान है कि जहां इंसान अगर वालिदैन की तरफ से कोई जुल्म, कोई तंगी, कोई तुरशी, कोई सख्ती भी होती उसको भी बर्दाश्त करे और उसके खिलाफ भी दिल के अंदर कोई मलाल ना लेके आए, ये एहसान है। वबिल वालिदैन एहसाना, लोगों वालिदैन से नेक, बहुत ही नेक सलूक करना। इम्मा यबलुगन्ना, अगर वो पहुंच जाए, इंदा का, तेरे होते हुए, यानी तेरी जिंदगी में अगर वो पहुंच जाए, अल किबरा, बुढ़ापे को, अहदहुमा औ किलाहुमा, उनमें से कोई एक या दोनों, हो सकता है माँ जिंदा हो या बाप जिंदा हो, यानी तेरी जिंदगी में अगर उन पर बुढ़ापा आ जाए, माँ को आ जाए, बाप को आ जाए, या दोनों को आ जाए, अल्लाहु अकबर, फला तकुल्लहुमा उफ, अरे उनको उफ तक न कहना। अब मैं क्या समझाऊं उफ क्या होता है, ये उर्दू और मैं अंदर इसका तर्जमा कोई नहीं, क्या समझाऊं। हम जैसे कहते हैं ना कभी नागवारी से बस उफ, इससे भी हल्की बात, यानी वालिदैन कोई बात करें तो हम मुंह को तरह सा मोड़ दें, उफ इससे भी हल्की बात है। असल में उफ कहते किसे, नाखून है, नाखून, नाखून के अंदर थोड़ी सी जो मैल जम जाती, मामूली सी, इसको उफ कहते हैं। अरे वालिदैन के खिलाफ तुम्हारे जहन में इतनी बात भी ना आने पाए जो तुम्हारे नाखून के नीचे आ जाती है, तब भी अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों कि अल्लाह ने फैसला किया। वक़ज़ा रब्बुका, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरी तरफ से नसीहत है, तरगीब नहीं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्लाहु व बिल वालिदैन इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihsana इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, उनसे उफ तक न कहना, वला तनहरहुमा, और ना उनको झिड़कना, ना उनको सख्ती की बात कहना और ना उनको झिड़कना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे नहायत ही नरमी से बात करना, नहायत ही मोहब्बत से बात करना। अब अल्लाह को नहीं पता था कि ये मसाइल वालिदैन के हो सकते, सब कुछ पता था ये मसाइल पेश आने, इसलिए औलाद को नसीहत की जा रही कि मसाइल आएंगे, इन मसाइल को बर्दाश्त किया तो फिर अल्लाह की रहमतें तुम पर होंगी। अगली आयत इससे भी अजीब आयत है, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहम, झुका देना, वक़्फ़िज़ झुका देना, लहुमा उन दोनों के लिए। तो यहाँ पे अजीब बात है कि पूरी आयत में अल्लाह ने तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया, ये नहीं कहा माँ के लिए, ये नहीं कहा बाप, दोनों के लिए इस्तेमाल किया है। और मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ, पाकिस्तान में हर दूसरे ट्रक पर और हर तीसरी कार के पीछे लिखा होता है मेरी माँ की दुआ। अरे बाप को क्या कसूर, बाप बेचारा बेकार ही है जो सुबह से निकलता है और शाम तक सड़कों पे धक्के खाता है, बाप की दुआ नहीं है। अरे माँ का एहतराम है, मैं मानता हूँ, मेरा सर तस्लीम खम है हुजूर की बात के सामने, माँ का अदब एहतराम है, बाप से ज्यादा है। बाप का भी तो किया करो, बाप का भी तो हक है। हर तीसरी कार पे लिखा हुआ है मेरी माँ की दुआ है। बाप ने क्या बिगाड़ा है? वो कौन था जो सुबह को निकला और जो शाम को लौट के घर वापस आया, जिसने अपने बूट भी तुड़वा दिए, जिसने कपड़े भी पुराने पहने, जिसने ईद पर भी कपड़े ना लिए, तुम्हें सबको कपड़े लेके दिए, जो बाज़ औक़ात खुद भूखा रहा, उसने तुम्हें पेट भर के खाना खिलाया, फिर सारी माँ की दुआ है। बाप को क्यों पीछे छोड़ देते हो? अल्लाह ने तो पीछे नहीं छोड़ा। पढ़ लीजिए घर में जाके ये आयतें, सूरा बनी इसराइल की 3 आयतें, 23, 24, 25, दोनों जगह तीनों आयतों में अल्लाह ने तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह लहुमा, उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को झुका देना। जनाह ज़ुल्ली, जना कहते हैं पर को, बाजुओं को भी कहते हैं पर को, अपनी रहमत के आजिजी के पर उनके लिए झुका देना। अल्लाह ने ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जरा समझिए। पर तो परिंदों के होते हैं ना। कभी आपको शिकार का मौका मिला? जब परिंदों का शिकार करते हैं, खासतौर पर तीतर का आप शिकार करें, जब तीतर का शिकार करते हैं तो वो शिकार खुद जख्मी होकर ऐसे गिरता है और तीतर अपने पर बिछा देता है, ऐसे अपने पर बिछा देता है। मतलब क्या होता है कि मौला अब तेरे ही हवाले है,
तू ज़िबा कर, तू कुर्बान कर, तू मुझे छोड़ दे, मैं तो तेरे हवाले। यानी अजीब होती है, पर ऐसे गिर जाते हैं, सर एक तरफ ढलक जाता है। यानी पैगाम ये होता है शिकार करने वाले को, तू खा ले, तू कुर्बान कर दे, तू छोड़ दे, अब तो मैं तेरे हवाले। तो मुसलमानों, ए औलाद, अपने आप को उस तीतर की तरह वालिदैन के सामने बिछा देना कि वालिदैन हम तेरे हवाले हैं, सख्ती कर या नरमी कर, मोहब्बत कर या ना कर, हमारे पर तो बिछ गए, हमारी गर्दन तो ढलक गई, हम तो तुम्हारे सामने हैं, अब तुम्हारे हवाले हैं, जो करना है कर। कभी अपने मन में डूब कर पाजा सुराग, कभी अपने आप से सवाल किया, कभी हमने अपने वालिदैन के सामने अपने पर ऐसे झुकाए? वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल, कभी इन आयतों को पढ़ा कर? ये आयतें तफसीर के मुहताज नहीं है, खुद ही गौर किया कर। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल, अपनी आजिज़ी के पर उनके आगे बिछा दे। इंसानों के जो पर नहीं होते, परिंदों को देखा कर, अल्लाह ने पर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और हम सब अपने आप से सवाल करें, यहाँ औलाद भी है, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, वो अपने आप से सवाल करें कि वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली वक़ुल लहुमा मिनर रहमा। और फिर आगे एक और शर्त लगा दी, पहले यहाँ के आजिज़ी के साथ झुका देना, फिर कहा कि रहमत भी साथ शामिल कर, मोहब्बत भी शामिल कर लेना, रहमत भी शामिल कर लेना। वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और दिल के अंदर भी ख्याल ना करना, दिल से भी ये दुआ निकलती रहे तुम्हारे, ए हमारे रब, इन दोनों पर ऐसे ही रहम फरमा जिस तरह इन्होंने बचपन पर हम पर रहम फरमाया। याद नहीं, पूरी पूरी रात गुजर जाती, अरे तू रोता था तो माँ बाप की नींद उड़ जाती, तू नहीं खाता था तो माँ बाप भी नहीं खाते थे, तू नहीं सोता था तो माँ बाप भी नहीं सोते थे, तुझे कोई तकलीफ होती तो तुझसे बढ़कर माँ बाप को तकलीफ होती थी। अरे औलाद, क्यों तुम भूल जाते? और औलाद को अपनी औलाद की बात तो याद रहती, पीछे उनकी ये बात याद नहीं रहती। बहरहाल वक्त हुआ चाहता है, मैं इन आयतों का तर्जुमा मैंने आपको सुना दिया। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आज खुदा के लिए कुरान खोलिए घर में, कभी एक दफा तो आप खुद पढ़ लीजिए। सूरा बनी इसराइल है, सूरा इसरा भी कहते हैं, आयत नंबर 23, 24, 25 को पढ़िए, तर्जुमा पढ़िए, किसी से पूछिए, कोई तफसीर देखिए। मेरी बात से मुख्तलिफ बात हो तो फिर मुझे बताइए कि नहीं जी आप गलत कहते हैं। बात यही है, यानी अजीब अंदाज है। मैं तो जब भी इन आयतों को पढ़ता हूँ रोना आ जाता, पता नहीं हम अपने वालिदैन के हकूक अदा कर सके कि नहीं कर सके, कहीं अल्लाह हमसे पूछ न ले क़यामत में। लेकिन वो हालात जिनके सामने अभी ये टाइम मौजूद है, ये मौका मौजूद है, वो इस मौके से फायदा उठा, वरना फिर मौत के बाद तो हमारे जैसा यशर होता है, फिर तो ऐसे ही रह जाती है, हसरतें रह जाती हैं, तमन्नाएं रह जाती हैं, आरजुएं रह जाती हैं। उन आरजुओं हसरतों का कोई फायदा नहीं। जाने वाले को तुमने हजारों रुपए के तुमने नान खिला दिए और तुमने देगें पका दी और तुमने फल खिला दिए, उस कब्र वाले को कोई फायदा नहीं। जिंदगी में एक सेब भी तुमने तो खिला दिया, अल्लाह की कसम तुम्हारी जन्नत का बायस बनता। मरने के बाद एक ट्रकों के ट्रक खिला दिए, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जिंदगी में जो एक सेब खिला दिया उसका फायदा होगा, जिंदगी में एक दफा हंस के देख लिया उसका फायदा होगा, जिंदगी में एक दफा उनके पांव पकड़ लिए उसका फायदा होगा। और मरने के बाद कब्र से लिपट के हजारों बरस रोते रहो, उसका फायदा नहीं होगा। ये वक्त अभी बाकी है। मैंने पिछली दफा कहा था ना कि लोए लोए परला पांडा तुम, ये लोए लोए अभी मौजूद है, और जिनकी लोए लोए मौजूद है अल्लाह के लिए इसे फायदा उठा लीजिए। आज खुदा के लिए कुरान को पढ़िए, 3 आयतें पढ़िए, इस पे इंशाल्लाह अगली दफा बात होगी। सुन्नत अदा फरमाइए।